Hi, Pratik. Hello, ma'am. How are you? Thank you so much for coming here. It's a pleasure, ma'am. It's my pleasure to interact with you. So, I have been listening to your conversations and I have been reading about you and I've been seeing like absolutely the fantastic work that you're doing. But before we go on, I love to ask everybody I talk to if I was to ask you to give yourself three words that would capture who you are today, what would those three words would be? What would you choose? Ma'am, I am firstly, I'm a part of the solution. Mm-hmm. I am I'm somebody who's um, actually I will say it by what we follow for MICT. We are a part of the solution. We have a vision of bringing a revolution because solutions bring revolutions. And thirdly, Mm-hmm. we have a vision of making an incredible and an inclusive India. Wow. Incredible and inclusive. Now, are these the three words that you would use for yourself? Like, I mean, you're using it for Rampme City, but would you use these words to describe I Pratik would I would Khandelwal? say I would say myself to be very spontaneous as a person, but Mm-hmm. spontaneous thinker, but a planned executor. Very nice. I would say myself to be somebody who's very positive about things and who does not believe in failures. Mm-hmm. And I think I'm somebody who lives life outside the comfort zone. Very nice. Outside the comfort. So you're somebody who's constantly challenging yourself. Yes, ma'am. So, Pratik, are these the three words that you would have given yourself, let me say, in 2005 or 10? Absolutely. So that is what the thing is. Sometimes when we grow up, we don't realize things about ourselves. But when you're deep down and down and out, you Mm. need to stick to your strengths. Some people find new strengths about themselves, and some people go into the history books of their own selves and see who they were, and they try to polish those things about them. And I think Brilliant. that's what I've done. What role would you say your parents have played in this? Just tell me a little bit about your childhood and your growing up years, and tell me about your family. Ma'am, I have been born and brought up in Jaipur. Hmm. And then I shifted to Bangalore for my engineering in 2004. And I have been here since 2004 in Bangalore. I took up a job with Infosys after finishing my engineering. Then I went on to become an entrepreneur. And then this accident happened. But My parents let's shift. stick, yeah, to your My childhood. Tell me pa- some incidents about from your childhood per se. Ma'am, in my childhood, I was a studious person, but I also had an inclination for sports. Hmm. So I was somebody who was doing well in his studies, but who was always wanting to play cricket. I had a great inclination towards cricket. Right. I was a speaker at that time too, and I used to take part in a lot of debates Lovely. and I was the head boy of my school. Hmm. So that was my childhood. Which school did you study from? I did schooling from Maharaja Savai Man Singh Vidyalaya from Jaipur. No. Interesting. And so, what role would you say between your mother and father? Who was more instrumental in making you the person you are today? You know, there's somebody who likes to challenge themselves, like you were a speaker, you were a sports person, you were the head boy. So, there's a lot of achievement that was happening even in your schooling years, right? So, who would Yes. you attribute it to, mommy or papa? Ma'am, I would attribute their quality of never stopping me, Mm. of being with me in whatever I wanted to do. So my It, parents have come from very humble backgrounds. They mm, have probably not seen the kind of things that I have seen or doing, but they have always supported me in whatever I'm doing. brilliant. So I think their support in whatever their son wanted to do has been a very major contribution earlier also and now also. Brilliant. So, do you have siblings? I mean, you have other people in your family? Ma'am, I have a younger brother. Yes. You have a younger brother. And what does he do, Pratik? Ma'am, he has his own business. And he's based in Jaipur. No, he's in Bangalore. He's in Bangalore. So, are your parents also in Bangalore now with you? Yes, they shifted. Yes, they shifted to Bangalore now. Oh, nice. Okay, very nice. So,
I always feel it's really important for us to go back to our roots and, try and discover who we were as children and how we have grown up to be who we are, and the role that our families have played, or the people around us have played into shaping us into who we are today. And Yes. I can see that there are some really incredible, like you say, incredible qualities that is surfacing and emerging in everything that you're doing right now, because most of us in our lives, we sleepwalk through life. We're just Yeah. existing one day to the other thing. Oh, this will happen and we'll do it like this, and then we have these plans which are extending into eternity. Agle saal ye karenge, uske agle saal aisa hoga. And then we have all of those palaces, dreams and palaces built, and then some life-changing moment happens, and it just shifts everything, and you suddenly wake up to who you are, right? For Yeah. you, I've read and I've heard the life-challenging moment was in 2014 when you had your Yeah. accident, right? So you've talked about one kind of life and then another kind of life. What I'm really interested in knowing from you is that you've talked about all the strengths that you brought to address the physical injury that you had. Were there any mental barriers that you had to break through? Ma'am, the point is, I was living a dream life in my 20s. I had a successful career. I had a good social life. I was present everywhere. I had a great family. I was about to get married. And this was the life that I was living. Mhm. And when that accident happened in 24 hours, there I am left with a waist down paralysis. I am left with a lot of internal body problems. On top of that, I am left with social isolation where friends no longer talk to you. People only have pity and sympathy for you. I am left with a life where people say he's a shut case now. You cannot go to work, so that is also gone, and you are basically seen as a patient. Now, when you're in that zone where there is no medical solution to anything, there is nobody talking to you. You are a wheelchair user. There is no accessibility in India. So what do you look up to? So all you see at that time is things that will not probably encourage you too much. And I think at that point, the biggest challenge that in my head that I had was to not let that negativity around me supersede what I really believe in as a person. And that time there were times when I was probably not depressed but sad about the state of my health or the state of the country, or you can say I was having temper issues, I was having mood swings where because every day was a challenge and nothing you can gain encouragement from, because nothing online, nothing on media, nothing from doctors. So I think the biggest challenge from that at that point was, how do you believe in yourself? How do you believe in yourself at that time when there is no hope? Absolutely. And that was the challenge. That was a major challenge in my life for those 2-3 years, 2014 to 17, that I had to really overcome, and that actually shaped me in being who I am today. So Pratik, आप क्या बोलते थे अपने आप को? Because why I'm asking you in such detail is because हम लोग, the kind of situation that we all are in, we all have different kinds of challenges happening, and we can't compare one challenge to the other. But there is generally an environment of hopelessness around us. Yeah. There is generally an environment of feeling, oh my God, we're trapped, nothing's going to change, this is going to continue, and we're getting various kind of news which are making us all, life-changing situations are happening in many people's lives right now, in various degrees, right? What is it? What was that inner conversation that you used to have? What was that inner monologue? आप अपने आप को कहते क्या थे जब इतना hopelessness है सब जगह, डॉक्टर्स बना कर रहे हैं, फैमिली, बिजनेस, अपॉर्चुनिटी, सब जगह डेड एंड है. What did you say to yourself in that moment? Ma'am, I only said one thing to myself, that my life is only going to be one thing, and that is fantastic. Brilliant. And that just drove everything. And that means I need to be part of the solution, of finding the solution to everything that is wrong.
and I need to sort it out. And I think as soon as you become the part of solution, it's an infinite world. Then there's no blockage. Then there's no wall. Then you can sort out things, whatever is stopping you, because you need to make your life fantastic. Brilliant. Brilliant. And then when you come to such a life changing, life awakening moment and realization, then there are many things that we have to let go of. No, हम लोग बहुत सारी चीजों के साथ में अपनी life को we are living, we carry a lot of baggage with us, unnecessary things, right? We keep them with us. But then when you have to move forward in such a pure way, which has got to be so focused and clean and clear, तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, right? We have to let go of many things. Yes. So what was the baggage that you felt that you let go of, that you said इसकी अब मेरी जिंदगी में जगह नहीं है, I can't spend time and waste time on that? ये एक एक्चुअली मेरे लाइफ में इनसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे कि आई हैव टेकन लेसन्स एंड लर्न. सो ये मेरा जो लेट गो का एक लेसन था, ये था मैम 2016 में जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे अपने एक्सरसाइज रिकवरी के. एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी, क्योंकि मैंने नंबर छोड़ा था वहां पे. तो पीपल सफरिंग फ्रॉम द सेम इंजरी दे स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग मी एंड दे लाइक तुम तो, ये तो भगवान का करिश्मा है, हो नहीं सकता, एंड बकवास है ये सब, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता. सो एकदम से 4-5 महीने बाद देयर वर सो मेनी वॉइसेस अराउंड मी जो बोल रही थी कि पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा मतलब ऐसा हल्का फुल्का हुआ होगा, ये पॉसिबल नहीं है. तो जब वो हो रहा था तो एक दोस्त ने मुझे एक दिन एक शब्द से इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट वाज डीक्लटरिंग. ही टोल्ड मी कि लाइफ में से वो 3-4 चीजें ही हैं जो तुम बनाती हैं, बाकी सब बकवास है. So I think it was very important to stick to those 2, 3, 4 things that you really believe in. Everything else is a noise and a chaos. You need to just let it go and you don't think about it. I think वो मैंने बहुत काम आए मेरे वो लेसन की. I do not give too much importance to whatever people are saying, क्योंकि अगर मैंने वो चीज बिलीव कर ली जो वो बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो फिर ये स्टोरी मेरी नहीं है, फिर ये उनकी है. अगर मेरी स्टोरी है तो मैं उसी में बिलीव करूंगा जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं. एंड ये लेसन डीक्लटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में 2016 में. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली आर्टिकुलेटेड एज वेल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आपने बहुत जगह में बात करी है अपने मैजिक के बारे में. My magic is what makes me. You have said that in many of your interviews and many of your conversations. You say my magic, right? तो उस मैजिक के बारे में और बताइए हमें, because I personally believe कि हम सबके अंदर में वो मैजिक है, but हमको उसको एक्सेस करना नहीं आता. हम इतने क्लटर्ड हैं, इतना सब भरा हुआ है, and we have so many other people's stories कि हम अपनी स्टोरी को पहचान नहीं पाते. So just give us just थोड़ा सा और खोल के बताइए, how did you access this magic? What is that magic? Which are the stories आपने छोड़ दी and which was the story that you held on to? मैम मेरी एक दो कहानियां आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए. क्यों मैं बोलता हूँ कि हम सब अंदर अपने आप में अंदर मैजिक है, क्यों मैं ये बोलता हूँ मैम? पहला था कि जब ऐसा इंजरी होता है तो मैंने आपको जैसे बताया सोशल आइसोलेशन होता है, कोई मेरे से बात नहीं कर रहा था, कोई भी फ्रेंड. तो लेकिन 1-1.5 साल हो गया था मेरी इंजरी के बाद. मुझे तो बात करना पसंद था, लेकिन अब मैं कैसे बात करूं, वो मेरे से बात नहीं करें. हु मेक्स दैट मूव टू ब्रेक दैट वॉल? तो 1.5 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मुझे बात करना पसंद है और मेरी कोई खुशी देता है तो मैं उनको फोन करने वाला हूं. तो एवरी वीकेंड आई यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू मीट मी एंड टेक मी आउट समवेयर. एंड दे वर लाइक कि तू कैसे बाहर आएगा भाई, तू मरीज है, तू क्या खा पाएगा, तू क्या कैसे को ट्रांसफर कैसे करेगा तू व्हीलचेयर से. एंड आई यूज्ड टू टेल देम यू जस्ट कम एंड मीट मी, बिकॉज irrespective of the injury, my mind, soul and spirit are absolutely free. तो जब वो मेरे से मिलने लगे एंड दे शुरू में द मेडिकल कॉन्वर्सेशन वर रिप्लेस्ड बाय नेचुरल फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन. नाउ दे अंडरस्टूड दैट आई एम द सेम पर्सन एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बर्थडे पार्टीज, ऑफ लंच पार्टीज, जो आप जिंदगी में नॉर्मल एबल बॉडी जिंदगी में बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन उस मेरी जिंदगी से चला गया था सब. So I slowly started becoming part of those everyday social meetings which was earlier not deemed fit for me. एंड उस दौरान ही मैंने सब लर्न किया कि कैसे मुझे व्हीलचेयर पे ट्रांसफर होना है, कैसे मुझे खुद को कैब लेनी है, कैसे मुझे हेल्पर नहीं बाहर लेके जाना है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता था. सो दैट फेज ऑफ गेटिंग बैक टू द कम्युनिटी, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट कॉल दैट आई स्टार्टेड मेकिंग एवरी वीकेंड टू माय फ्रेंड्स दैट चलो मिलते हैं, लेट्स मीट अप. सेकेंडली मैम एक कहानी और है. जब मैंने थोड़ा चलना शुरू किया तो एक बार हम एक ग्राउंड, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला कि चलो तुम्हारी अब वॉकिंग थोड़ी चैलेंजिंग करेंगे. सो ही टुक मी टू अ स्पोर्ट्स ग्राउंड नियर माय हाउस
and he made me stand on a stretch of land which was rocky, muddy, uneven, and it was wet because it had just rained. तो उन्होंने बस मुझे बोला कि चलो चलो इस पे. So standing at the top of that stretch, I was petrified. I was like, this is not happening, sir. मैं चलना जानता नहीं हूँ ढंग से, आप मुझे कहाँ चला रहे हो? Listening to this, he just came up to me and he told me a thing. He told me कि Pratik, forget about everything else. Just concentrate on your next step. बस यही करना है. And I think that so much click with me and stayed with me, क्योंकि कितना लंबा सफर है, कितना डिफिकल्ट सफर है, उसकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है. मुझे तो सिर्फ अपना बेस्ट अपने नेक्स्ट स्टेप पे देना है. और अगर मैं गिर भी गया तो सिर्फ मुझे एक कदम सही करना है, और मुझे पूरी पीछे का सही नहीं, एक कदम सही करना है और एक कदम लेना है. तो मैम एक्चुअली वो उसने सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि यही तो जिंदगी है, दिस इज लाइफ. तो उसने बस सिंप्लीफाई कर दिया प्रोसेस मेरे हेड में कि अब मुझे मोटिवेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी. वो कदम सही लेके मैं खुद ही को मोटिवेट कर रहा था. एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में पूरा वो स्ट्रेच चला गया. मेरे को लगा 1 महीना, लेकिन उसको चलने के बाद में आई वॉज रेडी टू टेक इट ऑन कि हाँ, अब आई नो हाउ टू गो अबाउट इट, एंड दैट इज टू नॉट क्लटर योर हेड, one step at a time, how to take motivation from your own failures and to be your own force. I think ये जो 2-3-4 लेसन मेरी लाइफ में हुए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम मेरे लिए. one step at a time. I mean, मेरे को ना इस समय जैसे बोलते हैं ना, रोई रोई मेरे खड़े हो गए इसके. हमें इट इज सच अ ब्यूटीफुल एंड सच एन ऑनेस्ट स्टोरी दैट यू शेयरिंग विद अस. एंड हम यही सच भूल जाते हैं कि ऑल वी नीड टू डू इज टेक दैट वन स्टेप. एंड दैट वन स्टेप पे अगर हम फोकस करके चले, चाहे गिरे चाहे बढ़े, लेकिन उस एक स्टेप पे अपना 100% हम दे दें, तो जी सक्सेस इज, आई मीन सक्सेस की परिभाषा बदल जाएगी. द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस विल चेंज. जी हाउ ब्यूटिफुली यू हैव सेड दैट. एक आपकी थोड़ी सी पहले जो आपने कहानी बताई कि आपने यू स्टार्टेड ब्रोक द वॉल एंड यू स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी. तो बहुत एक जो बैरियर होता है सिंपली एबल्ड एंड स्पेशली एबल्ड लोगों के बीच में, वो आ जाता है कि हमें सिंपैथी जो बन जाती है, है ना. तो आपने सिंपैथी को एम्पैथी में कैसे शिफ्ट किया? बिकॉज सिंपैथी इज डेबिलिटेटिंग, बट हाउ डिड यू मूव दैट सिंपैथी इनटू एम्पैथी? मैम एक्चुअली मेरे दिमाग में ये शब्द ही नहीं थे. मुझे नहीं पता था सिंपैथी क्या होता है, मुझे नहीं पता एम्पैथी क्या होता है. मैं तो सिर्फ इक्वालिटी ढूंढ रहा था, क्योंकि बात यह कि मैंने दोनों साइड की दुनिया देखी हुई है. अगर मैं उनकी जगह पर होता तो शायद मैं भी वही ट्रीटमेंट दे रहा जो मुझे मिल रहा था. ये भी तो बात सच है. तो अब इस ट्रीटमेंट को बदलने के लिए क्या करना चाहिए सर, मैं वो सोचता था, क्योंकि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. तो मैंने कभी कुछ वर्ड में दिमाग में आए नहीं, सिंपैथी एम्पैथी. आई जस्ट यूज्ड टू, मैम एक बहुत वो होता है एबल बॉडीड दुनिया का, कि हम एक टैग लगा देते हैं, एनीबॉडी हु इज डिफरेंटली एबल, इंस्पिरेशन. उसका इंस्पिरेशन का हम ऐसा टैग लगा देते हैं जिसको भी आप देखते हैं. एंड आई डोंट नो कि वो सिंपैथी है एम्पैथी है क्या है, बट आई थिंक इट्स अ गुड टू से वर्ड है कि अगर हम आपकी जगह होते तो हाँ, हम तो ये कर नहीं पाते, तो आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है. दैट इज व्हाई दे से इंस्पिरेशन. बट आई थिंक बहुत ही गलत तरीके से इस वर्ड को यूज किया जाता है, हाउ इट्स ऑब्जेक्टिफाइड. एंड मेरा लोगों से यही है कहना कि आप प्लीज नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कीजिए, कोई सिंपैथी एम्पैथी की जरूरत नहीं है. नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस कीजिए. आप किसी डिफरेंटली एबल इंसान से मिले तो ये बोलने की बजाय कि यू आर स्ट्रांग, मोर पावर टू यू, कीप फाइटिंग, इन सब की बजाय हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद देम. जस्ट समथिंग लाइक मौसम का मिजाज पूछिए, खाने में क्या पसंद है पूछिए, चाय पीते हैं या कॉफी पूछिए, उनकी हॉबीज क्या है पूछिए, दिल का हाल पूछिए, हाल देश का हाल पूछिए, मोदी ट्रंप इंडिया पाकिस्तान चाइना यूएसए की बात पूछिए, ग्लोबल वार्मिंग की बात पूछिए, स्टेट ऑफ इकोनॉमी की बात पूछिए, पॉल्यूशन पॉपुलेशन की बात पूछिए, और जाते जाते ये जरूर पूछिए कि अगली बार आपसे कब मिलेंगे, क्योंकि यही सारी बातें तो आप किसी आम इंसान से करते हैं, और हम भी तो वही हैं, एक आम इंसान. बहुत सुंदर. आप तो कवि भी हैं मैम. थोड़ी बहुत लाइनें लिख लेता हूँ. थोड़ी बहुत लाइनें अच्छी लिखते हैं और अच्छा बोलते भी हैं. कुछ और लिखा है तो वो भी बताइए. बहुत अच्छा लिखा था. मैम एक्चुअली मैं लिखता रहता हूँ 1-2 लाइनें, लेकिन वो अपनी शायराना उसमें लिखता रहता हूँ. आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा लिखा हुआ मैं डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उसको जाके पढ़ें, क्योंकि शायद अभी मेरे लिए वो बोलना थोड़ा
कुछ चीजें मेरी स्ट्रगल्स की होती है, कुछ चीजें मेरे किसी को इमेजिन करता हूँ, किसी उसको उसके लिए होती हैं. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट आर राइट. वेरी नाइस, लवली. शब्दों को रिझाना और आपस में मिलाकर उनको दिल के तारों को छूना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये सबके बस की बात नहीं होती है. तो आपने जैसे अभी अपनी लाइनें बोली, बहुत एकदम सटीक और एकदम टू द पॉइंट. वेरी नाइस. तो आई एम जी, डेफिनेटली थैंक यू. गोइंग टू गो टू योर इंस्टा एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली लुक दिस अप. तो मुझे आप अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, रैंप में सिटी के बारे में बताइए. मैम, तो जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि शुरू 2014-17 में क्या. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी. मेरी आपसे, आप जी. मुझे स्मिता बोलिए. स्मिता मैम. सिर्फ स्मिता, मैम को छोड़ दीजिए. मैम, आई विल सी. एक्चुअली वो नेचुरली आता है. सो मैम, सी, इट्स अ नेचुरल थिंग. 2014 टू 17 तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैं दिमाग में इवॉल्व हो रहा था, एंड द पर्सन आई बिकेम बाय द एंड ऑफ 2017. 2018 की बात है कि बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट खुला था, एंड वहाँ का कुछ स्टार्टर बहुत अच्छा था. मेरे दोस्त लोग गए थे खाने, एंड आई वांटेड टू गो बट आई कुड नॉट गो, क्योंकि वहां पे स्टेप्स थे. सो मेरा सिंपल था कि भाई, आपकी खाने की जरूरत या नीड मेरे खाने की जरूरत से कैसे ज्यादा है, मेरे को भी जाना है. So with that, I started Ramp My City, where I went on to approach owners of restaurants directly, to make requesting them and appealing them in a polite but a strong way to make a ramp at the point of entry in case they have steps, so that any wheelchair user can come into their premises and have a meal. So within the first 4 months itself, around 10 restaurants got themselves ramped. But when I visited those restaurants, these were over the phone requests जब ये हो गए थे, उन्होंने बना दिए. But when I went and in practical में जाके जब मैं गया वहां पे रेस्टोरेंट्स में, I saw that फिर भी मैं यूज नहीं कर सकता हूँ रैम्प्स को, because they were unsafe. अच्छे से नहीं बनाए थे, और लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी, नॉलेज ही नहीं थी किस तरह से बनाना है. बट द बिगर इश्यू दैट आई फेस्ड हियर वाज कि अगर रैम्प भी अच्छे से बना हुआ है, स्टिल I needed more assistance from the staff, which the staff was not aware of. For example, अगर मैं रिजर्वेशन कॉल दूं कि मुझे क्या आपके रैंप है, क्या मुझे एक अच्छी टेबल दे सकते हैं, तो उनको पता नहीं था क्या मैं बात कर रहा हूँ. अगर मैं वहां पे जाऊं तो आई वुड नीड सम ट्रांसफर असिस्टेंट. दैट मीन्स आई वुड नीड समबडी टू टेक द व्हीलचेयर आउट ऑफ द बूट ऑफ द कार. आई वुड नीड देम टू अनफोल्ड इट so that I can transfer and take up the ramp and give a comfortable table. These this all awareness was and sensitization was not available and not present in the restaurant staff. So I understood कि ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी इन लोगों को. तो उसके बाद रैंप माई सिटी ने सिर्फ डिजाइन सोल्यूशंस ही नहीं दिया, उन्होंने एक ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया, जहां पे हम रेस्टोरेंट स्टाफ को एंड टू एंड ट्रेनिंग देते थे कि कोई आपके आए, कोई फोन करे, कोई ट्रांसफर असिस्टेंट मांगे, किस तरह की टेबल हो, वॉशरूम किस तरह के यूज किया जाए, क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सब भी दिया जाए. बिकॉज मोटो और आइडिया बहुत सिंपल था कि अगर भाई कोई भी व्हीलचेयर वाला आए जो अपने घर में बंद है, इंडिया की हालत सोच के कि मैं बाहर कैसे जाऊं और कहाँ जाऊं, यहाँ तो इनएक्सेसिबिलिटी ही है, तो वो अगर वहां पे आए तो वो उसको एज एन इक्वल पार्ट ऑफ सोसाइटी महसूस हो, एंड वो आपकी तरह ही खाना खा पाए जैसे आप अपनी फैमिली के साथ खाइए. एंड ये बहुत जरूरी था वो ट्रेनिंग देना. तो वहां से रैम सिटी ने वो डिफरेंस बनाना शुरू किया, एंड आई थिंक इन 2.5 years हमने सिर्फ नॉट ओनली इन बैंगलोर 40+ रेस्टोरेंट्स कर लिए हैं रैम्प एंड ट्रेन, but हमने now we have moved on to workplaces, to residential societies, to government buildings, to sports academies, to schools, and we have footprints in 5 cities now, and it's a growing organization. Excellent. Where, which are the 5 cities where you're there? ma'am, so we are in Bangalore, we are in Madurai, we are in Bilaspur, we are in Bareilly, we are in Jaipur. Wow, congratulations. और बढ़े आपका ये फुटप्रिंट शुड एक्चुअली एक्सटेंड एवरीवेयर एल्स. तो ये आई ब्रेक द बैरियर, ये उसी का पार्ट है, इफ दिस इज पार्ट ऑफ दिस? नो मैम. सो मैम, रैंप बनाते बनाते ये बात पता पड़ी मुझे कि रैंप इज ओनली दी स्टार्टिंग ऑफ अ बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग के अंदर ही बहुत चीजें चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपको बताऊं, हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, हमने रैंप वहां पे बना हुआ होता है, मोस्टली बड़े बिल्डर्स बना के रखते हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस टू ऑपरेट नहीं मिलेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के तो लॉज में है कि होना चाहिए. लेकिन चाहे वो रैंप स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना हुआ हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना हुआ, पर बना देते हैं. अब आप अंदर गए, लेकिन मैम सबसे पहला क्या हमारे सामने आता है, एक ग्लास डोर.
अब उस ग्लास डोर को पुल करने में कोई भी डिफरेंटली एबल इंसान होगा, उसको दिक्कत होगी। एक्चुअली वहां पे सेंसर बेस्ड ग्लास डोर होने चाहिए जो कोई नहीं लगाता। अब मैं अपने अगर क्यूबिकल में गया तो क्यूबिकल की डेप्थ क्या है? कैन आई रीच माई चार्जिंग पॉइंट? कैन आई रीच माई पिन बोर्ड? कैन आई गो टू द एलिवेटर? कैन आई गो टू द फूड कोर्ट, गेट कॉफी फॉर माई सेल्फ, get water for myself, use the washroom? Is there a washroom, first of all, differently able washroom for me? Can I use it? On top of that, what is the attitude of my colleague towards me? किस तरीके से बात करते हैं वो मेरे से? क्या टीम प्लान्स में मुझे जोड़ा जाता है? क्या टीम मीटिंग्स और डिनर्स में मेरे को इंक्लूड किया जाता है? तो ये सब इंक्लूसिविटी लाने के लिए, और ऐसे अब होटल्स में चले जाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे चले जाएं, जहां सिर्फ रैंप काम नहीं है, वहां पे बड़े लेवल पे एंड टू एंड सोल्यूशन देने की जरूरत है। और सोल्यूशन ऐसे कि जिसमें कि आपको जमीन नहीं खोदनी पड़े, क्योंकि जमीन खोदते ही एज सून एज यू डू सिविल वर्क, अ लॉट ऑफ पीपल से नो टू इट। So we wanted to create a startup where we give easy to implement solutions but highly impactful, where people from different abilities, not only wheelchair but anybody who is visually impaired, who has hearing and speech impairment, they can go to these buildings, whether it's education, whether it's work, whether it's a residential society, whether it's an event. You can go there and you can have accessibility all over, because we have worked with the owner to make their premises better at physical accessibility. Our idea, and for that we have started this startup that is called IBTB. I break the barrier. Very And nice. it is not a charitable organization, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी चीजों के लिए मुझे कोई चैरिटी की जरूरत है, बिकॉज ये तो बेसिक चीजें हैं। बहुत सिंपल है मैम, अगर आपके घर के सामने रोड नहीं बनी हुई या स्टेप्स नहीं बनी हुई तो क्या इसके लिए आप चैरिटी उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना आप चैरिटी। तो फिर मेरे लिए अगर रैंप नहीं बना तो उसके लिए मेरे को चैरिटी क्यों उठानी है? मुझे कोई प्रोफेशनल चाहिए जो आके वो काम कर दे मेरे लिए। तो उसी को, ये इंडिया में कभी हुआ नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन आई थिंक आई फील वेरी लकी टू बी इन इंडिया फॉर दिस। रियली आई फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि ये काम मेरे जिम्मे में आना था और इसको पूरी ही ईमानदारी से करूंगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे आप ना कुछ इस तरह की, क्योंकि मैंने सुना है आपको बोलते हुए, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। हम लोग जो है यूथ के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग वी आर रीचिंग आउट टू यूथ अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, हर स्टेट पे, कॉलेजेस पे वी आर रीचिंग आउट टू द यूथ, और हम उनको अलग अलग चीजों के ऊपर में इन्फॉर्म कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। हम लोग जेंडर पे काम करते हैं विद अ स्पेशल फोकस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, हाउ डू यू प्रिवेंट इट। तो हम लोगों का प्रोजेक्ट है, उसका नाम है द रक्षण प्रोजेक्ट, जिसमें रक्षण का मतलब है एवरीबॉडी हु इज कमिटेड टू प्रिवेंटिंग हार्म, जो नुकसान को होने से रोके, वो रक्षण। आप नुकसान को होने से रोक रहे, मेरे लिए आप भी रक्षण है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से, तो अगर मैं अब इस यूथ की तरफ आपको मैं फेस कर रहा हूँ, एंड आई से Pratik, what is it that you would like these youth, these young adults to understand? They are entering into the 18 to 22-year-olds are the who we are working with. What is it that you would like these young people to understand and assimilate? क्योंकि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंटली एबल या स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए, हमारे दिमाग में किस तरह के स्टीरियोटाइप्स चलते रहते हैं, वो आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, इसलिए आई वांटेड टू जस्ट स्पीक इट आउट वंस। मैम एक्चुअली so during the lockdown I have had chance to interact with a lot of youth from different colleges. So I understood that while they want to contribute to this cause, they don't know how to go about contributing to this cause. So I think the problem has never been that people don't want to do things for you. The problem has been that people don't know how to do things for you. एंड दैट इज वाई मैं बहुत सिंपल, क्योंकि मेरी अप्रोच दिमाग में बहुत सिंपल रहती है कि मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, बस वहीं को एक्सेसिबल बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। और उसकी बैकिंग और उसकी कंसल्टेशन, उसकी हेल्प हम देंगे। अगर आप एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं और आप देखते हैं वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं जाना, अपनी RWA से जाके रिक्वेस्ट करने की बना दो। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने प्रिंसिपल को जाके बोलना है कि कॉलेज को बनाना है, क्योंकि अगर आप इतना मोर्चा गवर्नमेंट के खिलाफ उठा देते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उठा देते हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा, इंडिया में 100 मिलियन पीपल के लिए एक मोर्चा उठाना जरूरी है। तो आप यू जस्ट नीड टू गो टू योर इमीडिएट अथॉरिटी। आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल के पास जाइए, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप प्रिंसिपल के पास जाइए, आप अपने काम पे करते हैं तो आप अपने मैनेजर के पास जाइए एंड इंट्रोड्यूस टू देम व्हाट एक्सेसिबिलिटी इज। क्योंकि हम उनको, आवर आइडिया इज नॉट कॉन्फ्रंटेशन, वी वांट टू कोलैबोरेट ऑलवेज।
आप उनको समझाइए एक्सेसिबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से अगर ये जो 10 करोड़ लोग हैं इंडिया में इनके इनके अंदर थोड़ी सी मोबिलिटी ला दी तो कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने नेशन की तरफ डायरेक्टली। अगर वो लोग मोबाइल हो गए, you're directly contributing, basically helping them to the GDP of this country. तो my idea is very simple with the youth कि whoever आप जहां पे रहते हैं, जहां पे पढ़ते हैं, जहां पे काम करते हैं, सिर्फ वहां का आप अगर एक्सेसिबिलिटी आपने ध्यान दे दिया, आई थिंक दैट्स द बिग स्टेप इन अ कंट्री जहां पे कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। पर हमारे बहुत सारे बैरियर्स आर मेंटल बैरियर्स, बिकॉज हम अगर किसी को व्हील चेयर पे देखें या हम किसी को केन के साथ चलते हुए देखें या कोई हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के साथ में रहे, तो हमारे दिमाग में हम ऑटोमेटिकली उनको डम्प डाउन कर देते हैं, है ना? अरे पुअर थिंग, व्हाट कैन आई, मैं आपको आपके लिए मैं क्या, यू नो, सो इट्स अ वेरी we immediately distance ourselves from the person and हम उसको बहुत एक अलग से environment में उसके लिए अलग सा bubble बना देते हैं। उन चीजों के बारे में बताइए कि what are the things that we need to address in our mental barriers? मैम ये एक्चुअली मैंने अपनी टेड टॉक में भी बोला था और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, एंड ये फिर से मेरी लाइफ का एक किस्सा है। सो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरी शादी होने वाली थी 2014 में। सो बट दैट गर्ल डिसाइड टू लीव मी बिकॉज ऑफ फिजिकलिटी, एंड सिंस 2015 आई हैव बीन सिंगल एंड आई थॉट व्हाई नॉट गेट ऑन टू डेटिंग एप्स। क्यों नहीं भाई, इन 2018 आई थॉट क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज आई थिंक आई लुक ओके, आई टॉक वेल, थोड़ी शायरी भी आ जाती है, एंड आई एम विटी, आई एम स्पॉन्टेनियस, आई रिस्पेक्ट द अदर पर्सन इंडिविजुअलिटी, एंड आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ। तो आप देखेंगे तो आई एक्चुअली टिक अ लॉट ऑफ बॉक्सेस, बट whenever I go out to meet people from the dating world or even otherwise, I go through a lot of validations by them, because I make use of a wheelchair, and I get to hear a lot of things like, oh my god, how can I even go out with him? What will people say? My friends don't approve of him. He can't even go dancing. He must have been a sinner. पाप किए होंगे इसने, इसे शादी भी कैसे करेगा कोई? I mean, it's a strange world out there where people say they want to connect with your mind, heart, and soul, but at the end of the day, their perception of you does not move beyond your physicality. And if your perception of me is purely based on my challenge in life, then let us be fair enough and put across some of the challenges that you yourself are facing and treat you accordingly. So then, a lot of people are facing money crunch. They either spend more, earn less, or a terrible combination of both. I should not be going out with them. They might not end up paying their part of the bill. They are financially challenged. And how about people who are not doing too great at their jobs? Maybe somebody else got the promotion they needed, or maybe their startup was a failure. I would not want to come even close to them because their professional background, it can cause me depression. They're professionally challenged. And how about people who pick up a fight pretty often with their friends, with their siblings, with their parents, with their partners, and on some days it is because the toilet seat is not up or down. Their emotions are all over the place. They're pretty capable of spoiling my mood at any given point of the day. Those are the ones who are emotionally challenged. And how about people who are fighting the biggest fight, and that is the one within themselves? The mirror laughs at them. The challenge within, the personally challenged. And if you think what I say right now comes across as rude, stupid, insensitive, and ridiculous, then it is time that first, please, you start by breaking the mental barrier you have towards anybody facing a physical challenge, because it is an equal world out there and nobody needs to be treated any lesser because of the challenge they are facing in life. How difficult is this to understand? A person on a wheelchair does not want your pity, sympathy, empathy. Please keep it with yourself. All we want is an equal treatment. A treatment that you advocate for yourself and that I should vouch for myself. Brilliant. So that is my answer to the mental barriers now.
Very nice. Very nicely said. Very nicely said. Have you ever considered what is it that can be done? Because children with special needs and differently abled are especially vulnerable. Especially Yeah, vulnerable. yeah. So have you considered? Is there something that you are doing? Your group is doing? Have you thought about what is it that you would like to? Ma'am, my first interaction with people who are specially kids who are specially able came in December 2018, where we organized a Christmas party for them for special kids. And this was the first time I was seeing 50 of them almost at a ramp restaurant of ours. And when they came in, including the restaurant staff, we were just stunned and amazed at the kind of energy that these special kids were carrying with themselves. उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी. वो आपस में एक दूसरे की इतनी हेल्प कर रहे थे सब चीजों में कि हम तो शॉक रह गए थे कि हम क्या है यार. लुक एट दीज किड्स. हम तो एक ओला उबर हमारी मिस हो जाती है या एक कॉल मिस हो जाता है, उस पर गुस्सा लेके बैठ जाते हैं. इन बच्चों को देखिए. तब उन बच्चों को देख के मुझे लगा कि इन बच्चों को स्पेशल स्कूल में क्यों डाला जाता है. क्यों, अगर कोई चैलेंज फिजिकली चैलेंज है तो उस बच्चे को स्पेशल स्कूल में ही क्यों डाला जाता है. क्योंकि एक स्कूल्स में भी ये मैम रहता है कि वो स्पेशल जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको वो नहीं लेते हैं आसानी से. हालांकि दे माइट बी ब्रिलियंट इन देयर स्टडीज और इन देयर एटीट्यूड और इन व्हाटएवर दे आर डूइंग इन लाइफ, लेकिन फिर भी एक ब्लॉकेज है हमारे एजुकेशन सिस्टम्स में. तो बहुत जरूरी है कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में उनको एक्सेसिबल करके इन बच्चों का जरूरी एडमिशन करवाएं अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे पीछे रह जा रहे हैं. और बहुत जरूरी है कि टीचर की ट्रेनिंग हो. टीचर, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा आपके स्कूल में आ जाता है उसके बाद भी उसको बहुत चैलेंजेस होते हैं. क्योंकि मैंने बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं कि जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है स्कूल्स में, ऐसे स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में, तो फिर वो उनके क्लासरूम में वो एक म्यूजियम का पीस बन के रह जाते हैं. क्योंकि वो कहीं भी कैंपस में जा नहीं सकते हैं. कोई उनसे आके बैठ के बात कर ले तो कर ले, वो मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है. टीचर्स ज्यादा इंकरेज करते नहीं है ये चीजें. पिकनिक वगैरह उनके हिसाब से प्लान नहीं होती हैं. तो बहुत जरूरी है कि ये जो बैरियर्स है एजुकेशन सिस्टम में हमारे वो ब्रेक हो, जहाँ पे टीचर्स पहले तो हम एक्सेसिबल बनाए उनके कैंपसेस और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से ऐसे बच्चों को हैंडल करना है. बिकॉज yes, they are vulnerable, yes, they are having a physical challenge, but it cannot still supersede the talent that they have. So that change needs to come in our society, and I hope with the government working and with the private institute, at least there should be some steps now, hopefully will be taken soon, where we make an end-to-end system where right from infrastructure to training of teachers to making sure the mobility of the student within the campus and the treatment of them within the school और विद इन द कॉलेज इज फाइन. क्योंकि अगर इंक्लूसिविटी बचपन से ही आप बच्चों में डाल देते हैं, जो बढ़ते हुए बच्चों में, तो फिर एक्सेसिबिलिटी एक स्पेशल नीड नहीं होती, फिर कोर्ट की जाने की जरूरत नहीं होती, फिर पेटिशन लगाने की जरूरत नहीं होती. क्योंकि जब दो अलग अलग तरह के बच्चे साथ में बढ़ते हैं तो फिर उनके लिए एक्सेसिबिलिटी एक स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता. इट विल बी डन ऑन इट्स ओन, एंड आई थिंक वही राह इंडिया को ले जानी चाहिए उस तरफ. दैट इज हाउ वी विल बिकम अ मोर डेवलपिंग नेशन. तो अगर आपको मैं बोलूं कि इंक्लूसिविटी की पूरी डेफिनेशन आपके लिए क्या है? Ma'am, inclusivity is something that goes beyond an infrastructural change, because just an infrastructural change, yes, it will make people who are differently able more visible. उनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी. क्योंकि आज भी चाहे पॉपुलेशन ऑफ 100 मिलियन है हमारी जो आर फेसिंग फिजिकल चैलेंज, बट इनविजिबल क्राउड है ये आज भी. दे आर नॉट सीन एनीवेयर. तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना जरूरी है ताकि पीपल स्टार्ट कमिंग आउट, और उसके बाद हमारे एटीट्यूड में चेंज आने की बहुत जरूरत है कि अगर हमें कोई डिफरेंटली एबल कोई मिले तो फिर उनको कोई लेसर ट्रीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद के गिरेबान में जाके जहाँ के अपने भी चैलेंजेस देख लेने चाहिए. सब कुछ फेस कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम अलग अलग मुद्दों पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ये एक मुद्दा है जो बहुत जरूरी है, जिसमें इक्वालिटी लाना जरूरी है. बहुत अच्छा, वेरी नाइस. वेरी, अब मैं क्या बोलूं आपको, मैं क्या कह सकती हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर हुई आपसे बात करके. नहीं मैम, आप मुझे बोलिए कि जिन जिन स्कूल्स में आपकी जान पहचान है उनको मैं एक्सेसिबल बनवाऊंगी.
I was doing that a tongue in cheek kind of a thing. लेकिन मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया और मैं चाहती हूँ कि हम आपसे और भी बात करें और जहाँ हम यूथ से जुड़े हुए हैं वहाँ भी आपकी बात उन तक पहुँचे एंड डेफिनेटली दे शुड गेट मोटिवेटेड. कितना सिंपल है ना, अगर हम अपने अपने दायरों की जिम्मेदारी ले लें कि बस यहाँ पे we are going to make sure that this particular area is going to be safe, this particular Yes. area is going to be accessible, this particular area is going to be inclusive. और हमारे रहते रहते हमारी वॉच पे हम मेंटल बैरियर्स एंड फिजिकल बैरियर्स को एड्रेस करेंगे तो कितनी जल्दी हम सब कुछ बदल सकते हैं ना. बिल्कुल मैम. मैम और एक और चीज मैम, आपने मेरे से थोड़ी देर पहले पूछा था कि कुछ लाइनें आप बोल सकते हैं. मैम मेरी नहीं पर हरिवंश राय जी की बच्चन की 2 लाइनें बोलना चाहूंगा. प्लीज बोलिए. कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भर के आशाएं, दिल में अरमान यही है कि अब कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में भी पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं. शीशे से कब तक मुझे तोड़ोगे. मिटने वाला मैं नाम नहीं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. तुम मुझको कब तक रोकोगे. और जितने जुल्म नहीं इस जग में उतने सहने की ताकत है. जितने जुल्म नहीं इस जग में उतने सहने की ताकत है. तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूं. मैं सागर से भी गहरा हूं. तुम कितने कंकड़ फेंकोगे. चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. तुम मुझको कब तक रोकोगे. क्या बात है, क्या बात है. मतलब शब्द तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है लेकिन आपके उसको सुनाने का लहजा और भी ज्यादा खूबसूरत. इट्स वेरी वेरी वेल स्पोकन है. मेरे को यहाँ पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, शायद आप भी देख रहे हैं कि वहां पे सब लोग आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत सॉरी इन कोट्स इंस्पायरिंग फाइंड कर रहे हैं, यू नो. सो तो मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि मन नहीं भरा इसलिए एक आखिरी सवाल है आपके साथ में. वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि प्रतीक बी योरसेल्फ, तो क्या चीजें निकल के सामने आएंगी आज. मतलब आप अपना काम भूल जाइए, काम के बारे में हम नहीं बात करें. जस्ट यू एज अ पर्सन, बी योरसेल्फ. अगर मैं आपको बोलूं प्रतीक, तो क्या निकल के आएगा. मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा. मैम आपको मेरी एक बहुत जिंदगी में रहती है कि मैं आई ऑलवेज लिव द मोमेंट. तो अगर मैं आपसे इस दौरान बात कर रहा हूं तो यही प्रतीक है और ये पूरा 100% यहाँ पे आपके सामने है. क्योंकि सिर्फ मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये मोमेंट है मेरे साथ. कल जो गया उसका मैं कुछ कर नहीं सकता. आने वाला जो होगा उसको मैं बिगाड़ नहीं सकता. लेकिन जो ये आज है इसका ओनर मैं हूं. तो इसको मैं पूरा जीऊंगा. एंड प्रतीक लिव्स द मोमेंट. प्रतीक इज लिविंग द मोमेंट. प्रतीक हैज लिव्ड द मोमेंट विथ यू ड्यूरिंग द लास्ट 1 hour दैट आई हैव स्पोकन विथ यू. वेरी नाइस प्रतीक, बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके. और मैं खुद जाके इस लाइव में दोबारा सुनूंगी क्योंकि मुझे फिर से आपकी कविता सुननी है, मुझे फिर से आपकी वो पहली वाली लाइनें सुननी है. और मैं डेफिनेटली आई एम श्योर कि बहुत से लोग इस बात को सुनेंगे. और जो एक बात मैं लेके जा रही हूँ आपके पास से वापस, वो ये है, वन स्टेप एट अ टाइम. थैंक यू मैम. यस, Put 100% in this one step at a time. एब्सोल्युटली मैम. वही रास्ता है जो सब बोलते हैं कि किस तरीके से अपने अंदर, सब बहुत बड़ा लाइन है ना वो, कि आपके अंदर ही यूनिवर्स है. वो क्या रास्ता है उसका. वन स्टेप एट अ टाइम, दैट इज द वे टू इट. One step at a time. Very nice. Very, very nice talking to you, Pratik. I wish you all the very best in everything that you're doing. And I hope that we get and meet again and we get to talk again. I would love to do that. Been an absolute pleasure, ma'am. Thank you so much. Thank you for coming today. Thank you, ma'am. Thank you.